Hello everyone, this is Anjali Chauhan and this is day third of Power of Subconscious Mind, and today I'm going to share you the chapter third of Power of Subconscious Mind. The third chapter of the book is about the miracle working power of your subconscious mind. The basic difference between conscious and subconscious mind, we all know about that conscious mind is your objective mind, subconscious mind is your subjective mind. Whatever information you impress into your subconscious mind, it just feeds there, and then you will see lot of circumstances, lot of events and things as like that on the information you feed here. So basic difference is about the universal mind and the conscious mind, which really thinks before any assertion or whatever information you put. It asks questions to you. It's a asking mind actually. So in this chapter, actually, the first thing on which the author impresses is that how your subconscious mind controls all the vital processes of your body and knows the answer to all your problems. So your subconscious mind is actually called the universal mind, and it's a mind which always on its work. Like unlike of mini conscious mind, which really rest sometime, and it take a rest. But subconscious mind, it originate or it works always throughout 24 into 7. And when your conscious mind is sleeping, your subconscious mind is working at that time. It is called your involuntary mind, which always on its work. The second thing the author wants to suggest to you is that before you go to sleep, you must remember that if you want to have certain circumstances in your life, so you have to before going to bed, you have to impress that thought which you want to be your reality. You have to impress that thought before going to sleep. It's very important, because at that time, why always so many people are speaking about that before going to sleep you have to affirm the things. And why is it so? Because when you just go to bed before that in a state of when you are not completely sleep, and when you are just going to sleep, it's a state of slumber which is called. So in that case, in that position, when you are in not you are not consciously active, or you are not completely in a drowsy state, at that time whatever information you want to feed to your subconscious mind, that's it will go very easily. So that's why the miracle power, if you want to have in your life, so you have to deep down do the thing at the time of just going to bed or just before the sleeping. The third thing the author wants to suggest you is that the whatever thought you impress on your subconscious mind, you will see that your life will have the events, the conditions, the experiences, all things revolve around the idea or the thought you impress on your subconscious mind. तो हम दिमाग को जो भी बताएंगे, हमारी लाइफ में वो सब चीजें होने लगती हैं. ठीक है, मैंने अभी अपने पास्ट वीडियो में भी कहा था कि पहले मैं कहती थी ना, एक मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि मेरे साथ वो पर्सनली होने लगा, क्योंकि मैंने अपने आप को एक इंफॉर्मेशन दी अपने दिमाग को कि ये मेरे साथ होने लगा. तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग को देते हैं, वही रियलिटी में होने लगता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी वेरी कॉशियस while using the words, while using the emotion, you know instead of saying anything unnecessarily. भी किसी के बारे में जो हम गलत बोलते हैं, या हम डे थ्रू आउट द डे जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ बुरा कह रहे होते हैं, you must be very cautious while doing all these things, because these all are the negative thoughts. और जो निगेटिव थॉट है वो निगेटिव इम्प्रेशन देते हैं, और निगेटिव सर्कमस्टांसेस हमारे लाइफ के अराउंड रिवॉल्व होने लगते हैं. तो इफ यू वांट everything good in your life, fair enough in your life, so start doing that thing. That change comes from inside. And I have read somewhere that there are two words, and one word is inside you and another word is outside you. So if you want to change something in your physical reality, you have to start that change inside you. So that is what basically author wants to suggest you.
The third thing, there are so many examples which has been given in this book and in this chapter particularly. The one and foremost example of the author itself, and he really suggests you that he was suffering from a skin cancer, it's a type of skin cancer. तो जब उनके साथ ये सारी चीजें हुई तो ही ऑल्सो सजेस्ट हिमसेल्फ टू सो मेनी सर्जन डॉक्टर्स, और उन्होंने भी बहुत लोगों को अप्रोच किया होगा, फाइनेस्ट से फाइनेस्ट डॉक्टर्स को उन्होंने अप्रोच किया, बट द रिजल्ट्स वर सेम, and even the results were not same, even getting more worse. So what he have done, so someone given him one particular phrase, और I think किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप ये बात अपने दिमाग में डाल लें कि जो हमारी लाइफ है, ये जो पूरा इंसान जब बनता है वो एक सिंगल सेल से ओरिजिनेट होता है. सो वी हैव अ पावर ऑफ क्रिएशन, ये हमारे माइंड का ही क्रिएशन है. तो आपको यही बात समझनी है, दिस इज द मेन थिंग. तो जो ऑथर होते हैं वो उस पे ही काम करना शुरू करते हैं, एंड देन ही थिंक्स कि जो वो पर्सन उन्हें सजेस्ट करना चाहते हैं वो यही है कि अगर डीप डाउन आप ये समझ लें और आप अपने माइंड को ये समझा लें कि मैं बिल्कुल सही हूँ, आई एम इन द फाइनेस्ट कंडीशन ऑफ माइंड, तो कहीं ना कहीं ये फिजिकल रियलिटी में पॉसिबल हो सकता है. एंड ही हैव डन दैट, एंड उसके बाद उनका जो वो स्किन कैंसर था वो बिल्कुल ही हट गया बाय डूइंग द अफर्मेशन. और इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ अफर्मेशन ऐसे कह रहे हैं कि यस मैं ठीक हो गया हूँ या मैं ठीक हो गई हूँ. यू नो अफर्मेशन और एनी सेंटेंस विदाउट इमोशन कैन नॉट वर्क फॉर यू, बिकॉज आप सिर्फ बोल रहे हैं और आप उसमें इमोशन नहीं रखते हैं, आप उसमें कन्विक्शन नहीं रखते हैं. तो वर्ड्स विदाउट कन्विक्शन आर जस्ट वर्ड्स, but words with conviction makes the belief system. So that's what author want to suggest you कि आपको सिर्फ words use नहीं करना है, words with conviction use करना है, such that it makes a belief system over you. Then you know there are another so many examples, and I really want to quote one thing here, which was I really love that, which is written here, that man is what he thinks all day alone, and it is given by the American philosopher that is Ralph Waldo Emerson. ठीक है, तो वो उन्होंने कोट किया और मुझे बहुत पर्सनली पसंद आया है. और द सीक्रेट which author want to suggest to us is that as within so without, as above so below. ठीक है, और वो कहते हैं कि जो ये हमारे, जो मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ कि जो भी थॉट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करते हो वो आपकी फिजिकल रियलिटी में होने लगता है. और ये बात सिर्फ ऑथर नहीं कह रहे हैं, देयर आर सो मेनी फिलोसफर्स, सो मेनी सेंट शेयर्स जो थे, साधु संत, बहुत लोगों ने ऐसी बात कही है. गौतम बुद्धा ने ये बात कही है, जीसस ने ये बात कही है, एंड और वही चीज जो ऑथर है यहाँ पे जो मैसेज है वो कन्वे करना चाहते हैं, दैट you have power of creation. So why you are just seeing the outer world, आप सिर्फ बाहर की चीजों को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो भी कंडीशन, जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में अकर होते हैं वो बाहर बाद में, मैंने कहा ना कि देयर आर टू वर्ड्स, तो वो अंदर पहले होते हैं, देन वो हमारी फिजिकल रियलिटी में अपेयर होते हैं. So if you want to change, so you have to change start from yourself, and change start from your mind. The impression of thoughts over your mind makes a change. तो यहाँ पे बहुत बहुत बार थ्रू आउट द चैप्टर वो जो रिपीटेटिवली एक चीज ऑथर वांट्स टू सजेस्ट टू यू इज दैट हैविंग सिलेक्शन ओवर द थॉट. थॉट्स ऑफ दिन में हमारे कई तरीके के होते हैं कि हम कभी किसी के बारे में गलत भी सोचते हैं, कभी हम खुद के बारे में गलत सोचते हैं, हमारे ऑटो सजेशंस होते हैं, कभी हेटेरो सजेशंस होते हैं व्हिच इज गिवन बाय द सोसाइटी, बिकॉज हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो उस तरीके से हुई है कि धीरे धीरे मतलब जो हेटेरो सजेशंस हैं हम उन पे ज्यादा वर्कआउट करने लगे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने क्या कहा, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, बिकॉज एनवायरमेंट रियली इम्पैक्ट्स यू. तो वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफ जिए और आप जो भी चीजें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, whatever fate you want to achieve in your life, the one thing you have to do, first of all you have to understand that which type of emotion is going around my mind. किस तरीके के इमोशन चल रहे हैं, किस तरीके का जो हम ये सेल्फ टॉक अपने आप को दे रहे हैं, ये किस तरीके का चल रहा है.
क्या ये निगेटिव चल रहा है, या किसी की बिचिंग चल रही है, किसी की बुराई चल रही है, यू नो जो हमारा ये एक कल्चर ही बन गया है, मुझे लगता है हमेशा जजमेंटल, जो मैं सोचती हूँ कि हमेशा जज किया जाता है हर किसी को, किसी के खड़े रहने पे, बोलने पे, हर चीज पे, हंसने पे, रोकने पे। आई डू नॉट नो व्हाई इज इट सो, बट जो ये इस तरीके का जो एक माइंडसेट हो गया है, ऑलवेज हैविंग दैट जजमेंटल आइज ऑन द अदर, तो वो ये कहते हैं कि अगर हम इन्हें रिड्यूस कर दें, मिनिमाइज करें किसी न किसी तरीके से, और हम कोशिश करें कि हम इन थॉट पैटर्न से बाहर निकलें और इनकी अपोजिट थॉट्स पे काम कर सकें, यानी कि जितना हो सके पॉजिटिव कर सकें, और जजमेंट से निकल कर एप्रिशिएशन की तरफ बढ़ सकें। और किसी को जजमेंट देने से अच्छा है किसी को सम वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन दे दें। तो ये रियली, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस ओवर योर पर्सनालिटी, over your character, and I think over your life as well. So author wants to suggest that thing again and again in this chapter, and he gives so many examples, and one thing on which author want to make a special embrace is that of belief system. तो जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे ही वर्क करता है। द प्रिंसिपल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज योर बिलीफ सिस्टम। सो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, you know, if you can believe about yourself that you can do it, so no force in this world can stop you to doing for doing that thing. So it's you who is hurdling yourself, who is restricting yourself, who is resisting your own growth. So it's you and you and you. So you have to understand that thing कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को हटा पाऊँ, या जो भी अगर आप इस रेजिस्टेंस को किसी भी तरीके से अगर आप इसे रोक पाए, तो वो आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। तो वो आपको कैसे कर सकते हैं आप बिलीफ सिस्टम को स्ट्रेंथन? यू हैव टू अफर्म थिंग्स फॉर योरसेल्फ, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं है कि पर्टिकुलर चीज के बारे में, जब तक हमें ये नहीं पता कि हम ये कर सकते हैं, एट दैट टाइम, उस समय तक आपको किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अफर्म करना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैं ये कर सकती हूँ। हम सोचते हैं कि सिर्फ बिलीफ सिस्टम से क्या होगा। बहुत बार लोगों का ऐसा कंसेप्ट रहता है कि ओनली बिलीफ सिस्टम कैन नॉट चेंज एवरीथिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये हो सकता है कि सिर्फ बिलीफ सिस्टम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि doing action in a right direction, that makes a difference actually. But starting something, the very first thing which is required to start something is having the belief that I can do, such that I can take the first step on that. किसी काम को शुरू करने से पहले वो जो आइडिया, ये जो थॉट आता है, वो इम्पोर्टेंट है। और वो थॉट कब आएगा? जब हमें लगता है कि नहीं यार, मैं ये करने में अच्छी हूँ, मैं जो भी पर्टिकुलर काम करती हूँ मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। सो सच दैट तभी तो मैं आगे उस पर इम्प्रोवाइजेशन कर सकती हूँ, या आगे कुछ चांसेस हैं उसको अच्छा करने के। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप फॉर बिकमिंग द वर्जन यू वांटेड टू बी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर बिलीफ सिस्टम। तो इसलिए बिलीफ सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड again, the life principle will flow through your rhythmical and harmoniously if you consciously affirm that I believe that the subconscious power that gave me the desire is now fulfilling it through me. तो अगेन एंड अगेन सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पे बात हो रही है कि अब मैं अपने आप को दिन के हर समय, जितने भी उन्होंने यहाँ पे हीलिंग टेक्निक्स दी हैं, या उन्होंने जितने एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट किए हैं, या हिप्नोटिस्ट के, साइकोलॉजिस्ट के, एक्सपेरिमेंटल जो उन्होंने यहाँ पे प्रूफ दिए हैं, एज अ प्रूफ और एज अ एग्जाम्पल, इफ यू कैन कंसीडर वट एवर यू वॉन्ट टू कंसीडर। तो जो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए उनमें वो यही कहते हैं कि अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कैन वेरी, कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में उसको रिमाइंड कर रहे हैं, बट बात सिर्फ इस चीज पे हो रही है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस में डीप डाउन उस इंफॉर्मेशन को डाल सकें, कैसे आप अपने आप को बिलीव कर सकें। जनरली आज के समय पे होता क्या है कि वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग सच दैट हमें अप्रूवल मिल सके सोसाइटी से, पेरेंट्स से, एल्डर से, किसी से भी जिनको हम आइडियलाइज करते हैं कि हाँ मैं सही कर रही हूँ यार। बट आई थिंक बिफोर डूइंग दैट थिंग, बिफोर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी एंड फॉर एनीवन एल्स, आई थिंक वी नीड अप्रूवल फ्रॉम आवर ओन सिस्टम। ठीक है, हमें अपने दिमाग से हमें अप्रूवल चाहिए, और उस अप्रूवल के लिए आपको वो जो पर्टिकुलर थॉट है उसे इम्प्रेस करना बहुत जरूरी,
और वो एक ही चीज से होता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन. When you do repetitively give a particular information to your subconscious mind, the subconscious mind do not, think consciously. It will not ask a question to you that ये सही है, ये गलत है, नहीं अभी तो ये है नहीं, फिजिकल रियलिटी में तो ये है नहीं. These all, system have this all uh, asking questions and raising concern. ये सारा काम conscious mind का है, subconscious का नहीं है. तो subconscious mind में जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट फॉरवर्ड करते हैं वो एज इट इज उसको मान लेता है. तो एज इट इज अगर आपको कोई चीज मनवानी है उससे, तो आपको रिपीटेटिवली वो चीज बोलनी पड़ेगी. ओके, सो इफ यू वांट टू इमेजिन अ हैप्पी एंडिंग or solution to your problems, feel the thrill of accomplishment, and what you imagine and feel will be accepted by your subconscious mind, which will bring it to the past. तो वो ये कहते हैं कि जो भी एंड प्रोडक्ट, एंड गोल आपका है, यानी कि जो गोल एकम्प्लिशमेंट की जो फीलिंग है, जो इमोशन है, अगर आप उसको यहाँ डाल सके किसी तरीके से, रैशनली, whatever technique you use, you visualize it, you make a short film over that, और जो भी आप कर सकते हैं, affirmation during the day time, आप दिन में जितनी बार भी आप कॉन्शियसली बैठ रहे हैं और उस बारे में सोच पा रहे हैं, methods कुछ भी हो, the motive behind doing all the affirmation techniques, visualization, whatever technique you are using, the motive behind that is to impress the thought of being the version you wanted to be in your life to the subconscious mind. Okay, so that आपका जो subconscious mind है उसे समझ सके. So इस chapter से हम ये समझते हैं that you can do anything because your subconscious mind have infinite powers. मैं बहुत बार सोचती हूँ खुद से भी कि कि सम सॉर्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो सकता है वो मेरे लिए, मुझे लग रहा हो कि कुछ बड़ी बात सी है. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैड ऑलरेडी डन दैट थिंग. बहुत लोगों ने कर लिया है और बहुत लोगों के लिए वो शायद बहुत छोटा है, और हमें जब लग रहा है कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन हो सकता है ये सिर्फ 0.% में हो, इवन 0.000% में हो जो हम मांग रहे हैं. तो इफ यू थिंक दैट दिस इज द बिगर थिंग, बट देयर इज अ स्पेस. ठीक है, एक स्पेस है जहाँ से आप इसे, आपको सारी चीजें मिल सकती है. द ओनली थिंग इज टू कन्विंस योर सेल्फ. पहले खुद को कन्विंस कीजिए, येस आई कैन डू इट, and I only can do it. So it's only when you'll do it repetitively. So repetition is the power, and having that belief system, creating the belief system, because पहले से नहीं होता है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा और अपने आप बिलीफ रखना पड़ेगा. तब देन एंड ऑफ द डे आप बोल पाएंगे कि आई एम सो थैंकफुल दैट आई have that belief over me. So thank you, and that's all for this chapter and this video. Thank you.